Dr. Hari Narayan Tiwari, and he is the co-founder of Managing Director of FloodCon Consultants. Dr. Tiwari is the initiator of two diverse programs and FloodCon Practicum program from FloodCon. Dr. Tiwari is the alumni of BIT Sindri and IIT Roorkee. He did his BTech from BIT Sindri and MTech and PhD from IIT Roorkee. He was the recipient of two distinct awards, including gold medalist at IIT Roorkee. Dr. Tiwari has, to his credit, 14 years of research and professional experience in water resource engineering with a focus on river engineering, flood management, using RS, GIS, hydraulic structures, irrigation planning and project planning. Dr. Tiwari has also served as consultant technical at Ministry of Jal Shakti, Government of India. Dr. Tiwari has worked over 70 prime consultancy projects. In his credit, over 50 national, international level research papers. Dr. Tiwari has delivered several invited lectures on different aspects of flood and river management at different stages. He is the active member of several technical committees and reviewer of multiple peer-reviewed journals. He has also started a magazine, Pani Teri Kahani, for 360-degree views about water. He has also started online training under Company Professional Education, CPER, and provided the professional training of to the tune of 1,000 plus young engineers, students at no cost. He has delivered several capacity development lectures to improve the nexus between the academia, industry and research, AIR, under the program of corporate social responsibility. Company has worked for after flood analysis using advanced remote sensing approach to get the remuneration at block level people in Bihar. Company is continuing the research along with his industrial works to explore the nexus between research and consulting in India under his leadership. So, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Hari Narayan Tiwari with a big hand on the stage for his topic on dam break modeling, need, process, possible outputs with respect to Jharkhand. Good evening to all. First off, I would like to thank organizers to inviting me at this place, which I have started my, you can say, a professional career. And after that, I did my master's and PhD from IIT Roorkee, as already mentioned. So right now, in this Engineers Day, my topic of presentation, it's regarding the dam break modeling. If I would like to simplify over that कि डैम ब्रेक मॉडलिंग क्या है, मतलब क्या ज़रूरत है हमें इसकी, और एज ए झारखंड स्टेट हमारा इसका नीड कहाँ तक है. तो इसके फर्स्ट स्लाइड में is there any? No sir, actually it's not. Next slide. Yes, going. Yeah. Hello. Check the mic. So first I would like to talk about the need. तो आई थिंक जस्ट कल या परसों का आपने न्यूज़ सुना होगा लीबिया का. इट्स हैवॉक. इन 14 to 15 minutes 30,000 people washed away. 30,000 people. वहाँ पे 2 डैम ब्रेक हुआ ड्यू टू द एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट, जिसको कि शायद मतलब अभी हम आज के डेट में कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम रेनफॉल को स्टॉप कर दें. और अभी ये इवेंट्स बहुत सारे इंडिया में भी मतलब विजुलाइज हुए हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट सबको अच्छा लगता है, बट डेवलपमेंट के बाद क्या अगर ये ऐसे डिजास्टर्स होते हैं तो क्या हमारा इसका फोकस है, हम क्या इतना प्रिपेयर हैं उसके लिए.
एज ए स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज अगर हम प्लानिंग की बात करें तो डैम्स इज अंडर द स्टेट ऑनरशिप. सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है 2 से 3 दिन पहले, और एक दिन में 570 mm की बारिश हुई है. 570 mm की बारिश जो लगभग लीबिया में साल भर में होती है. सो इस टाइप के इवेंट के बाद आप देख सकते हैं बिफोर फ्लड और आफ्टर फ्लड का मतलब सिनेरियो क्या रहा है कि एक डेवलप्ड सिटी था और कुछ भी नहीं है. मतलब नो वन कैन इमेजिन कि 15 मिनट में कैसे पूरा एक शहर खत्म हो गया. तो ये एक नीड है, मतलब ये एक एसेंशियल थिंग है कि हम लोग डेवलपमेंट का तो सोच रहे हैं, और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं डैम का एक बहुत बड़ा रोल है, आइदर वाटर सप्लाई स्कीम्स, इरिगेशंस, और हमें वाटर कंजर्वेशंस के लिए. तो यहाँ पर ये नीड क्रिएट हो जाता है कि हम अकॉर्डिंगली प्लान भी करें. एज हमारा जो फर्स्ट सेशन था उसमें सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली के रोड्स बहुत चौड़े बनाए गए थे आज़ादी से पहले, वो आज भी चल रहे हैं, क्योंकि उस समय एक विज़न था कि हम उसको सस्टेनेबल कैसे बनाएं. सेम क्वेश्चंस हमारे पास है कि अगर हम वाटर रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं उस कंडीशन में जहाँ पे हमें उसको देखना है कि आफ्टर 50 ईयर्स 100 ईयर्स क्या है, क्योंकि डैम्स के एज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड पे आए कि अभी हमारा इसका लीगल कंप्लाइंसेस क्या है. अगर हम स्टेट की बात करें, क्योंकि वाटर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, और डैम सेफ्टी एक्ट जो 2021 में स्पेसिफिकली इसी के लिए लाया गया, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी मिसमैच बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर कोऑर्डिनेशन in the subject of water. So Dam Safety Act clearly specifies all those things कि आपको क्या करना है एज ए स्टेट, सेंट्रल आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी और आपकी क्या क्या लाइबिलिटीज है. सो अगर इस एक्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारी टाइमलाइंस हैं. अगर फर्स्ट टाइमलाइन की बात करें कि जितने भी डैम ऑनर्स है, आइदर इट इज ए स्टेट और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट एजेंसीज, तो उनको एक रिस्क असेसमेंट स्टडीज़ करनी है अपने डैम्स की, चाहे वो डैम्स अर्दन डैम हो, वो ग्रेविटी डैम हो, और उस स्टडी को करने के लिए उनको डिफरेंट गाइडलाइंस दी हुई है कि कैसे करना है. इस एक्ट में वो डिफाइंड है कि कब करना है, कैसे करना है और कितने टाइम में करना है. इसके अगेंस्ट में बहुत सारी ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज भी डिफाइन की गई है, आइदर फॉर अ स्टेट्स और एनी डैम ऑनर्स. सो ये एक्ट एक तरह से कंप्लायंस भी है और एक ज़रूरत भी. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लीगली कंप्लाइंट है या फिर ऐसे हैं तभी हम कुछ करें, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है कि सपोज अगर हम डाउनस्ट्रीम में रहते हैं डैम के, तो कहीं ना कहीं हम भी विक्टिम हो सकते हैं. अब ये कब होगा ये किसी को नहीं पता. जैसा कि अभी क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो कम से कम हम प्लान रहें, क्योंकि हमारे पास अगर जब कोई डिजास्टर होता है तो उस समय शायद प्लान करने के लिए कुछ होता नहीं. जैसे आई एम गिविंग ए स्मॉल डिजास्टर एग्जांपल ऑफ आसाम. वहाँ पे फायर ब्रोक हुआ था, सडनली फायर ब्रोक हुआ था, और एनडीआरएफ को ये गया इंटीमेशन की एक आग लगी है, आपको जाना है विथ किट. एनडीआरएफ ऑलरेडी दे आर प्रिपेयर्ड कि कभी डिजास्टर होता है वो जाते हैं, उनके पास एक स्टैंडर्ड किट होता है, दे हैव टेकन अ किट. वो वहाँ गए सबसे पहले उन्हें ये नहीं पता था कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि आग किस चीज़ की है, मतलब एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी. वो एक सामान के साथ गए, वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि जो वाटरिंग करनी है, जो वाटर से वो आग फैलता है, और जो भी केमिकल था, तो वो उन्हें पता ही नहीं था वो इन्फॉर्मेशन. वहाँ पे जाके वाटरिंग शुरू हुई और आग हो और बढ़ गया. तो डिजास्टर में ऑब्वियसली किसी का भी बहुत ज़्यादा हम अपना जो ब्रेन एप्लीकेशन है वो मिनिमम हो जाता है, तो प्रिपेयर्डनेस इज नीडेड. सो फॉर दैट, लाइक कमिंग टू द झारखंड प्रॉस्पेक्ट, अभी झारखंड में टोटल नंबर ऑफ लार्ज डैम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल रजिस्टर ऑफ डैम्स 79 लार्ज डैम्स हैं झारखंड में, जिसमें कि जो 55 डैम्स है वो कंप्लीटेड हैं एंड 24 डैम्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं कुछ, एंड मैक्सिमम डैम्स यहाँ पे अर्दन इन नेचर हैं, एंड more than 45 dams are 30 years old.
ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स, जो जस्ट कल ही इनॉग्रेट हुआ है नेशनल इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जयपुर में, जो अभी हो रहा है। मतलब आज भी उसका सेकेंड डे था। आई वॉज देयर इन फर्स्ट डे कॉन्फ्रेंस। सो यहाँ पे 45 डैम्स जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, 30 इयर्स ओल्ड, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये डैम सेफ्टी एक्ट के तहत भी और हमारा जो एक सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू और एक तरह से जो सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इट इज़ वेरी मच नीडेड। तो आफ्टर नीड आई एम कमिंग इन टू दैट कि हम किसी चीज़ के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए पहले उस रिस्क को समझते हैं कि वो कैसा रिस्क है, कितना रिस्क है। तो अगर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम डैम को ब्रेक करके या तोड़ के देखें कि हमारे पास कितना रिस्क है, सो दैट वुड बी नॉट पॉसिबल और फिजिबल भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे आज के कंप्यूटेशन टाइम में देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स। सो किस टाइप के हम टूल यूज़ करेंगे, तो इस पे मैं बस दो से 3 मिनट बोलूँगा और एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है। जब हम इस टूल को यूज़ करने के लिए, हम डैम को ब्रेक करने के लिए कोई टूल यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर और कंप्यूटर के अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको कि हम एग्जैक्ट सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं यूजिंग आवर डिफरेंट डेटा सेट। तो यहाँ पे जो भी कुछ अगर लोग वाटर रिसोर्सेज से लिंक्ड है या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर सिविल इंजीनियर, तो आप अंडरस्टैंड तो कर ही सकते हैं कि रिवर का हमें एक किस टाइप का रिवर है, वहाँ पे कितना वाटर स्टोरेज है, उस डैम की कैपेसिटी क्या है, और डैम की कैपेसिटी के अलावा रिवर अभी किस स्टेटस में बह रहा है और वहाँ क्या कोई क्लाइमेट चेंज के चलते मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए होता है उस टूल को, उस मॉडल को रन करने के लिए। सो अगर हम बात करें कि डैम फेल होने का तरीका क्या हो सकता है, तो 4-5 तरीके हैं। जैसे फर्स्ट तरीका है कि हाइड्रोलॉजिक, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो फेल हुआ लीबिया में, तो वो फर्स्ट रीज़न था कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जितने बारिश या जितने पानी के लिए हमने उसको डिज़ाइन ही नहीं किया है, और वो उतना पानी आया और वो फेल हो गया। सेकेंड इज कोई जियोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स की डैम बनाते समय हमने कुछ जियोलॉजिकल कंसिडरेशन नहीं लिए और उसके कारण वहाँ पे फेल्योर्स हुए। द थर्ड इज स्ट्रक्चरल, ऑल्सो स्ट्रक्चरल फेल्योर्स भी होते हैं, बट दे आर मिनिमम। अगर हम डैम फेल्योर की हिस्ट्री देखें पूरे वर्ल्ड वाइड, तो स्ट्रक्चरल फेल्योर्स आर वेरी लेस। सिस्मिक फेल्योर्स आर देयर, सिस्मिक भी एक रिस्क है, सिस्मिक फेल्योर। एंड द फिफ्थ इज अ ह्यूमन इन्फ्लुएंस काउज्ड, जो एक तरह से कह सकते हैं कि इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, जैसे अभी हमारा इंडिया में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे डैम्स हैं जिसका पोटेंशियल ये बताया जा रहा है कि चाइना में अपस्ट्रीम में डैम बना रहे हैं एंड दे कैन यूज दैट डैम एज ए वॉर टूल। तो उस केसेस में कि अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो वो भी द काउज ऑफ डैम फेल्योर हो सकता है। कमिंग टू द प्रोसेस फ्लो चार्ट कि हम कैसे करते हैं, तो फर्स्ट हमें डेटा सेट चाहिए किसी भी स्टडी के लिए या किसी भी मॉडल को रन करने के लिए। उस डेटा सेट को हम उस पर्टिकुलर टूल में डालते हैं, जो टूल हमारे पास अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। अभी मोर देन 50 टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं डैम ब्रेक एनालिसिस के लिए। और उसके बाद हम एक्चुअल कंडीशन में वहाँ पे देखते हैं कि अगर ये डैम फेल होता है तो हमारा कौन कौन सा एरिया इनंडेट होगा, कितना एरिया इनंडेट होगा, हमारे पास कितना टाइम है एक्ट करने के लिए। तो दिस इज़ अ प्लानिंग कि अगर हमें पता है कि सपोज यहाँ पे एक धुरवा डैम है या कोई भी डैम है, अगर फेल होगा तो हमारे पास हाफ एन आवर है, 45 मिनट्स है, 30 मिनट्स है डाउनस्ट्रीम के लोगों को बचाने के लिए। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर वो कंपोनेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है थ्रू द डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज। सो दिस वन ऑफ द टूल विच आई एम मेंशनिंग, it's a tool by US Army Corps of the Engineers USA। So ये tool बहुत generic tool है and it is a public domain tool. That means anyone can having experience on that can use for their dam and they can analyze what could be the inundation area if any dam breaks।
So these are the, like it's a typical data set of dam terrain where the reservoir is there, downstream data is there. So you require the terrain data, river bathymetry data, and the dam data. That means what could be the dam size, heights, width. So that would be the required to model to terrain, typical terrain model. And this is the typical output. That means we have run one of the model. Suppose this is the reservoir area and somehow it failed. So how the inundation area will become? What could be the area? What could be the time from first step to last step? So that we can find it out easily. And that is the part of planning. That means suppose if any area which is a very much of populated, so it will take half an hour or 45 minutes, then we are having a decision making capability to relocate that people if the dam breaks. So these are typical outputs. Like first important output is a time of first arrival. So that is very much important, because if we know that we are having this much of only time if any natural disasters happens, so that is the major point. And then the water level also. Because in Libya where that dam break has happened, so water level at that time is almost more than 3 to 5 meter at particular location where there is a city. And the duration is also important. That means how much time it will, that means it will stay for there. If the time is maybe 1 second, 2 seconds, so it will hamper less. But if the time is higher, or inundation is higher, so it will create a more disaster in terms of losses of either our entity or either our public. So this is actually we have done one of the case study. It's not for Jharkhand actually. So I would like to just show, it's a small case study of Odisha reservoir. It's a So you can just look into that. This is the reservoir, and when the reservoir or dam break happens, that means it is not an actual scenario. We have created from a model. If something has happened, if there is a spillway or down spillway, so how it will inundate the area. And you can also put all the components, whether it is a plain area, whether it is a land use land cover, whether it is a agricultural area. So we can easily map, and then we can plan for a different event, whether that is an event of hydrological failure, structural failure, other failures. So it's a visual of that. That means now you can look into the breach started. And how the area of inundation is increasing in downstream. So time step, everything you can find it out from a model. And then it is very easy to, you can say, at the time when you are at the decision making process. So coming to that, that point, that means when we are doing this type of exercise for any dams or reservoirs, so basically we have to find 3-4 components only. What could be the inundation map, मतलब कितने दूर तक हमारा inundation possible है, क्या timing है, और उसके हिसाब से एक चार्ट बनाया जाता है for a decision maker कि अभी अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो essentially हमें क्या क्या चीज़ करनी है और उसको किस कैटेगरी में रखना है. तो कैटेगराइजेशन होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स भी हैं इस पे. तो लाइक कि वो जोन जो है ब्लू जोन में है, ऑरेंज जोन में है, रेड जोन में है. तो व्हेन वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज तो हमें एक इमरजेंसी एक्शन प्लान प्रपोज करना होता है. डाउनस्ट्रीम ऑफ द डैम कितना एरिया हमें कवर करना है, तो वो सारा चीज़ ये ईएपी में आ जाता है. एंड द पॉइंट रिगार्डिंग झारखंड मैंने जो पहले ही बताया था कि यहाँ पे 45 डैम्स 30
ईयर्स ओल्ड है और एज पर डैम सेफ्टी एक्ट जो कंप्लाइंसेज है वो 14 दिसंबर 2026 तक स्टेट गवर्नमेंट या जिसकी भी ऑनरशिप है झारखंड में वो उनको मीट करना है। तो इफेक्टिव टाइम आज के बाद अगर देखें कि इस प्लानिंग को पूरे प्रपोजल तक लेके आने के लिए इट्स अ 0.8 मंथ, 0.8 per month, like per dam. So it is very less because when we try to create a mathematical model or computer based model, so at least it will take 5 to 6 months to feed the data, simulate all the conditions, get the results, plan all those things. So although the time is on the shorter side, so it is a time to act now for a Jharkhand government also. That means the dam under ownership of Jharkhand government, they can do those type of exercise, and also in the case of any disaster, they can save the life also. So this is just a brief about, like I would like to brief, this is a FloodCon Consultants. That means I am a co-founder of this company. I have started this firm in 2016 after my doctorate from IIT Roorkee. So we are doing basically sustainable land and water environmental resources development and management project. And till now, we have completed more than 100 plus projects, including government and privates also. Since you can say in consulting business, we are first in India, which is a black hair consultant, because generally the consulting business is a white hair consulting business. They need a very much of experienced people, but what we did, we have started from bottom to top approach. We are also having a good advisor teams who is having experience of more than 40 plus years. But we have tried to include research into the industry, consulting, and we tried academics people to also understand the industry, because when people coming from like BTech and MTech and they are straightforward coming to the industry, so they are not having any type of industrial knowledge or practical knowledge. So what we are trying to do, we are trying to develop a capacity of those people also. So because we have done almost 1,000 plus students who is directly coming from a bachelor or master degree, we have developed their capacity specifically in the area of land, water and environmental resources. So we try to adopt an approach of learn, create and sustain. We are actively on the learning stage, and specifically the state of the art, like what are the advancement of the technology, and then we are creating a value for a project engineering and planning and design, and that is only the way to sustain the present to get the livable future. Thank you very much. डॉक्टर हरि नारायण तिवारी जी को उनके बहुत ही जीवंत, बहुत ही प्रासंगिक प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अनुरोध करता हूं हमारे नेशनल हाईवे विंग के मुख्य अभियंता जो को चेयरमैन है इस सेशन के, वाहिद कमर फरीदी साहब आएँ और हमारे हरि नारायण तिवारी जो इसके प्रस्तोता हैं उन्हें सम्मानित करें, पुष्पगुच्छ देकर, शॉल देकर, स्मृति चिन्ह देकर। और जब सम्मानित किया जाए इन्हें तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। गुंजायमान कर दिए सभागार को। और हमारे सभी वक्ताओं ने बहुत ही जीवंत प्रस्तुति दिया है, बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही समसामयिक। डैम ब्रेक मॉडलिंग, अभी लीबिया का जो हुआ है डैम ब्रेक, उसके जितनी भी हानि हुई है उसको देखते हुए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है, कितनी जान माल की क्षति हुई। अब मैं चेयरमैन एंड को चेयरमैन साहब से अनुरोध कर